Hello students, welcome to your PD Education. I am Jitendra Tyagi. So as all of you know, post-gate counseling is going on and students are applying in different institutes. Okay, so now in this video I am going to talk about IIT Roorkee. Okay, IIT Roorkee is one of the oldest IIT and very good IIT. So in this video we will discuss where you can apply, what is the application procedure to apply in IIT Roorkee. Okay, so here we can see that forms for MTech program are open in IIT Roorkee. Okay, for PhD it will start soon, but MTech programs they have started the applications, right? So there is PG programs. Okay, you have to go to PG programs in IIT Roorkee, and now here you can see admission to postgraduate programs. Okay, so there is the different options are there. So those who have qualified GATE examination this year or earlier, who have a valid GATE score, so they have to click this option MTech MArch MURP, third number. Okay, so you have to go to this option MTech MArch MURP, right? When you will click this option, then what are the other details? So here you will get this option information voucher, apply online, login. Okay, so when you will click apply online, there will be option of new registration. So you click new registration and then fill your details, and then email will go to you, check your email. Okay, and then you log in from the credentials generated, right? And before that you can read the information voucher also if you want to read. Okay, now after login there are different steps. I will discuss all those steps, but before that I want to tell you some important point. So there they will ask you admission categories, right? So there are 3 admission categories in this program, in MTech program. One is GATE qualified candidates. Okay, so those who qualified GATE examination. Okay, and another one is for IIT graduates. So those who have BTech from IIT and having 8 CGP or more. Okay, so they can apply in this mode. And there is a very important scheme called Golden Girl Scheme for female applicant. ओके, सो फीमेल के लिए एक गोल्डन गर्ल स्कीम है जिसमें विदाउट गेट भी आपको एडमिशन मिल सकता है. ठीक है, सो आई विल डिस्कस अबाउट दिस स्कीम आल्सो इन दिस वीडियो. ओके, सो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, गेट क्वालिफाइड या आईआईटी ग्रेजुएट और गोल्डन गर्ल स्कीम. नाउ मार्क्स रिक्वायरमेंट. सो लेट अस सी दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो कैंडिडेट्स ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स और CGPA of 6 on 10 point scale at the qualifying degree level. मतलब आपकी जो डिग्री है, बीटेक की जो डिग्री आपको मिली है, इन दैट डिग्री आपका 60% मार्क्स होना चाहिए या 6 CGPA होना चाहिए 10 पॉइंट के स्केल पे. ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगर आपका 60% से कम है जनरल कैटेगरी में या ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में या 6 CGPA से कम है, सो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस प्रोग्राम के लिए. ठीक है, बट फॉर SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके, सो इनके लिए क्या है 55% मिनिमम क्राइटेरिया है और 5.5 का CGPA है. ओके, सो आपकी डिग्री में जो होंगे वही माने जाएंगे यहाँ पे, राइट? डिग्री पे जो मेंशन होंगे मार्क्स वही आपके मार्क्स माने जाएंगे. सो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, राइट? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन प्रोसीजर. सो जो गेट अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गेट कैंडिडेट. जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे, जो गेट के थ्रू जाएंगे, उनके लिए क्या है कि यहाँ पे एक वो कैलकुलेट करते हैं नॉर्मलाइज गेट मार्क्स इन योर पेपर. ठीक है, गेट स्कोर नहीं, नॉर्मलाइज गेट मार्क्स कंप्यूट किए जाते हैं IIT रुड़की में और उसके बेसिस पे डायरेक्टली एडमिशन मिलता है. देयर इज नो इंटरव्यू फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, देयर इज नो रिटन टेस्ट, नो इंटरव्यू इन IIT रुड़की. डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा आपको, स्कोप पे आपका रिजल्ट आएगा डायरेक्टली. ओके, सो मार्क्स कैसे कंप्यूट करते हैं ये नॉर्मलाइज गेट मार्क्स? आपके 100 में से कितने मार्क्स आए वो यहाँ पे लिखा जाएगा. ठीक है ना, आपकी ब्रांच में जो भी आपके मार्क्स आए और उस पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना, जिस भी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे, हाईएस्ट मार्क्स, वो डिनोमिनेटर में रहेगा और ये रिजल्टेंट कंप्यूट किया जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 64 मार्क्स आए हैं 100 में इलेक्ट्रिकल के पेपर में, और इसमें जो टॉपर के मार्क्स आए हैं जिसकी रैंक 1 है 92, ठीक है, सो आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे वो बनेंगे 64 डिवाइडेड बाई 92 इंटू 100, सो 69.57. क्लियर? 69.57
5.57। ओके, ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे और इसी के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, जैसे बाकी आईआईटीज में तो इंटरव्यू और रिटन भी होगा, यहाँ पे नहीं होगा, सीधा गेट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए डायरेक्टली अलॉटमेंट होगा, राइट। लेकिन जो गोल्डन गर्ल स्कीम है वो डिफरेंट है और आईआईटी ग्रेजुएट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट इज दिस गोल्डन गर्ल स्कीम, इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे हम। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है? फर्स्ट रैंक होल्डर, जिसकी पहली रैंक होगी, या गोल्ड मेडल जिसको मिला होगा, गोल्ड मेडलिस्ट फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, फ्रॉम एन आईआईटी, किसी आईआईटी से या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से या किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसकी रैंकिंग NIRF रैंकिंग अमंग टॉप 50 है। ठीक है, लेटेस्ट, जैसे जो भी लेटेस्ट NIRF रैंकिंग अवेलेबल है उसमें जो टॉप 50 इंस्टीट्यूट होंगे उसमें उन इंस्टीट्यूट का जो टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट गर्ल होगी, ठीक है ना, उनके लिए गोल्डन गर्ल स्कीम है, राइट। वो एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं IIT रुड़की में। ओके, नाउ इसमें रिलैक्सेशन क्या है कि आपको गेट से रिलैक्सेशन है, मतलब अगर आपका गेट क्वालिफाइड नहीं है या गेट कम भी है आपका गेट स्कोर, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी जो नॉर्मल सीट्स होती हैं उससे ऊपर इसकी सीट्स रहेंगी, ठीक है, तो ज़्यादा भी इसमें सीट्स बढ़ भी सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो ये गोल्डन गर्ल स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बच्चे टॉपर रहे हैं अपने कॉलेज में, टॉप 50 NIRF रैंकिंग वाले कॉलेजेस में, उनके लिए ये स्कीम है, राइट। नाउ फाइनल ईयर एलिजिबल है, यस, एमटेक के लिए जो फाइनल में पढ़ रहे हैं बच्चे वो एलिजिबल हैं। एक डेट से पहले एडमिशन डेट जो एडमिशन होता है उससे पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारी बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है 18 मार्च मंडे से, ठीक है ना, और जो एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होगा वो होगा 20 अप्रैल 5 PM, 20 अप्रैल 5 बजे को ये एंड हो जाएगा, तो उसके पहले आपको अप्लाई करना है। और ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 जुलाई और क्लासेस आपकी 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, चॉइसेस टू अप्लाई। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है ना, चाहे आप गोल्डन गर्ल स्कीम में कर रहे हो, ठीक है, या दूसरे में, जैसे ऑप्शंस आपके आएंगे चॉइस फिलिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे मेनली जो गेट वाले कैंडिडेट उनके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको एक ही फॉर्म भरना है। जैसे बाकी IITs में क्या है, अलग अलग फॉर्म भी भरने पड़ते हैं कई जगह, बट इन IIT रुड़की आपको सिंगल फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म भरा जाएगा एमटेक के लिए, बस। उसी फॉर्म के अंदर आपको अपनी चॉइस अरेंज करनी है कि पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, ठीक है। अब जब ये चॉइस आप अरेंज करेंगे उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको ऐसा नहीं देखना कि आपको क्या मिल सकता है, ठीक है, वो ऐसे ऑर्डर में अरेंज नहीं करना। आपको कैसे अरेंज करना है, जो आपकी सबसे फेवरेट ब्रांच होगी, ठीक है, जो सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट और स्पेशलाइजेशन होगी उसको टॉप पे रखो, ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओ। सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉप पे, उसके बाद सेकंड फेवरेट, थर्ड फेवरेट, फोर्थ फेवरेट, इस तरीके से आपको अरेंज करना है अपनी चॉइसेस को, एक ही फॉर्म के अंदर वो चॉइस आएंगी। अब इसमें जो डिपार्टमेंट अवेलेबल होंगे वो ऑटोमेटिकली आएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं। जैसे आप जब बीटेक की डिटेल भरेंगे, गेट की ब्रांच डिटेल भरेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको एक लिस्ट दिखाई देगी, चॉइस लिस्ट, और उसमें से आपको पिक करना होगा। सो मैक्सिमम आप 4 डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो, ठीक है, 4 से ज़्यादा डिपार्टमेंट चूज नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, जो टोटल आपकी चॉइस बनेंगी मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकती है, 14 तक, ठीक है, 14 से ज़्यादा चॉइस आप फिल नहीं कर सकते। तो आई होप कि 14 में तो सारी जो आपकी फेवरेट होंगी, जो आप चाहते होंगे वो सारी कवर हो जाएंगी, लेकिन डिपार्टमेंट 4 ही आप भर सकते हो, ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड एडमिशन ओनली इन 1 प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस एंड द मेरिट। मतलब जो आपने 14 चॉइस भरी होंगी उसमें जो कोप में आएगा वो केवल एक ऑप्शन आपको मिलेगा, कोई भी एक, ठीक है। मान लिया आपको 5th नंबर का चॉइस मिला, नाउ उसके नीचे की जो चॉइस होंगी 6, 7, 8, 9 वो आपसे अब नहीं मिलेंगी, आपको अगले राउंड में भी नहीं मिलेंगी, वो गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वो चॉइस को नहीं लेना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप अगले राउंड में उससे ऊपर जा सकते हो, मतलब 4th मिल सकती है, अगले राउंड में 3rd मिल सकती है, 2nd या 1st वाली जो आपने टॉप पे रखी होगी वो मिल सकती है। मतलब अपग्रेडेशन होता रहेगा कोप के राउंड्स में, जो भी आप डिसीजन लेंगे, राइट। लेकिन जो उसके नीचे की होंगे वो सारी गायब हो जाएंगी। ओके, सो इसलिए आपको जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो टॉप पे रखना है और लीस्ट फेवरेट को सबसे नीचे रखना है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट।
नाउ हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। सो ये आपका जहाँ पे अप्लाई करना है उसका URL है, ये आप देख सकते हैं, इस लिंक पे आपको करना है अप्लाई, ठीक है। और अंदर चलते हैं इसमें, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक फ़ोटो चाहिए JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर का JPG फॉर्मेट, 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में, ठीक है। 12th का सिंगल PDF फॉर्म में, इसका अलग PDF, इसका PDF, और UG की जो भी आपके BTech की जितनी भी मार्कशीट हैं ऑल सेमेस्टर्स की, और UG की जो डिग्री है, इन सबको आपको एक PDF बनाना है इनका, ठीक है। पूरा BTech का एक PDF रहेगा, राइट। अगर आपने PG किया हुआ है तो उसकी सारे मार्कशीट का एक PDF बनेगा, ठीक है। डिग्री अवेलेबल है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल है उसका एक PDF में आप सबको सिंगल में मर्ज कर दोगे, राइट, और यहाँ पे अपलोड करोगे। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कैटेगरी का वो चाहिए, ठीक है। गेट स्कोर कार्ड, ठीक है, गेट स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 22 मार्च को, कल डाउनलोड हो जाएगा, तो वो आप यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट रैंक, अगर आप गोल्डन गर्ल स्कीम में जा रहे हैं तो आपको कॉलेज से, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहां से सर्टिफिकेट चाहिए कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फर्स्ट रैंक है आपकी, ठीक है। और अगर सपोज इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका अभी प्रेजेंट नहीं है, राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, देन आपको क्या देना है, अंडरटेकिंग देना है, ठीक है। कि अंडरटेकिंग का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो दिया हुआ है उन्होंने वेबसाइट पे, वो अंडरटेकिंग आप अपलोड कर देंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सो एप्लीकेशन फी कितना है, नॉन रिफंडेबल फी है। जनरल EWS OBC के लिए 300 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST के लिए 150 है, और फीमेल के लिए निल है। मतलब कोई भी फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। तो सभी फीमेल को, चाहे आपका कितना भी लो गेट स्कोर है, ये फॉर्म भरना चाहिए। ओके, ऑल फीमेल कैंडिडेट ये फॉर्म आपको सबको भरना है, क्योंकि कोई फीस नहीं है। और अगर कोई फॉरेनर है, फॉरेन कैंडिडेट है, गेट क्वालिफाइड है, तो 1000 उसका चार्ज लगेगा, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ सिलेक्शन फॉर एडमिशन, ठीक है। अब एडमिशन किस सिलेक्शन पे होगा, तो पहले तो एडमिशन की, जैसे गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट में तो आपका किसके बेसिस पे होगा, वैलिड नॉर्मलाइज गेट मार्क्स के बेसिस पे होगा, राइट। जो IIT के ग्रेजुएट हैं उनका CGPA के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, राइट। और जो गोल्डन गर्ल स्कीम में फीमेल जाएंगी उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका रिजल्ट कहाँ पे आएगा, ठीक है, कोप के थ्रू आएगा, कोप में आएगा। जो IIT ग्रेजुएट हैं उनको डायरेक्टली IIT से मेल आएगा, और जो गोल्डन गर्ल में है उनको भी IIT की तरफ से सेपरेटली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ इसको अप्लाई करने से पहले आपको कोप पे रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज कोप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे। ओके, सो आप, आई होप कि आपने कोप पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। सो नाउ ये आपका फॉर्मेट है अंडरटेकिंग का, ठीक है, कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसके लिए आप ये फिल करके इसका स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं PDF, राइट। नाउ जब आप एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे, एंड इन दिस ऑप्शन पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर न्यू अकाउंट। ओके, रजिस्टर न्यू अकाउंट पे आपको फर्स्ट टाइम क्लिक करना है। देन आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, नेम, ईमेल को कंफर्म करना है, फ़ोन नंबर और पासवर्ड जनरेट करना है, मतलब बनाना है। और जो पासवर्ड बनाएंगे उसको ध्यान से कहीं नोट कर लेना, ठीक है, भूल मत जाना, लिख के रखना है। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करके क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लियर। नाउ क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये ऑप्शन आएगा आपका, MTech लिखा हुआ रहेगा उसमें, MArc या MURP एडमिशन। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे पहली बार, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेंट डिटेल्स, मतलब कौन सी एडमिशन कैटेगरी है। तो जो भी आपकी एडमिशन कैटेगरी है, जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, गेट के थ्रू जाना चाहते हैं, वो गेट पे क्लिक करेंगे, और गोल्डन गर्ल वाले गोल्डन गर्ल पे क्लिक करेंगे, राइट। IIT ग्रेजुएट यहाँ पे क्लिक करेंगे। आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स इस स्कीम में होंगे, तो आपको गेट पे क्लिक करना है, जो गेट के थ्रू जाना चाहते हैं। ओके, नाउ अब देखो अंदर आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसमें एडमिशन कैटेगरी आपने चूज किया गेट, फिर आपसे पूछा जाएगा नाम, नेशनलिटी इंडियन, अपनी कैटेगरी जो भी है उसके ऑप्शंस आएंगे वो आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो। अपना ईमेल ID डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ओके, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करके अगले पेज पे जाएंगे, राइट। नाउ गेट रजिस्ट्रेशन नंबर,
तो इसमें जो गेट क्वालिफाइंग ईयर है, किस ईयर का गेट आपके पास है और गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रहा है, ठीक है, और वो विदाउट पेपर कोड डालना है, मतलब EC DA CS वो नहीं होना चाहिए उसमें, उसके आगे की डिजिट यहाँ पे रखेंगे और जो पेपर कोड होगा वो यहाँ लिखना है, लाइक EC DA CS। कितने मार्क्स हैं आपके 100 में से वो लिखने हैं। कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है एंड गेट स्कोर यहाँ पे फिल करना है, गेट का रैंक यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ये सारे डिटेल गेट रजिस्ट्रेशन वाली आप यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा क्वालिफाइंग डिग्री। क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब आपने बीटेक किया है या BE किया है, ठीक है। सो वो यहाँ पे चूज करके ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है बीटेक या BE, ठीक है, उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। डिग्री लेवल में आपका रहेगा UG लेवल, डिग्री UG लेवल की है। एलिजिबिलिटी जो है, आप एमटेक के लिए एडमिशन में जा रहे हैं तो UG क्लिक करना है, ठीक है ना। डिसिप्लिन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी डिसिप्लिन मतलब ब्रांच है उसके यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। अब अगर आपकी एग्जैक्ट ब्रांच जो डिग्री पे मेंशन्ड है अगर वो मैच कर रही है इन ऑप्शन से तो उसको क्लिक करना है। एंड इफ योर ब्रांच इज नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अदर का, उस पर क्लिक करेंगे अदर पे, ठीक है। और फिर वो अदर वाली ब्रांच जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें ब्रांच लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, यू विल मेंशन योर बीटेक ब्रांच, क्लियर। देन यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी उसका नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे जहां से पास आउट है, किस ईयर में पास किया है, ठीक है। अब इसमें पूछेंगे पास आउट हो चुके हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पास और अपियरिंग, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी तो यहाँ पे पास्ड, और अगर आप फाइनल ईयर में है तो अपियरिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वाले स्टूडेंट अपियरिंग। जो परसेंटेज या CGPA मोड है आपका वो ऑप्शन पूछा जाएगा, ठीक है, कितना CGPA है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, परसेंटेज ऑब्टेन्ड। उसके बाद हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स एंड 10+2 लेवल, तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा 10+2 लेवल में, यस करेंगे। हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स एट UG लेवल, ऑब्वियसली बीटेक BE में आपका रहा होगा, ठीक है ना, तो उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। या किसी ने MSc किया हुआ है, ठीक है ना, तो BSc में आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है यहाँ पे यस करेंगे, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस और आपका जो भी एड्रेस है वो फिल करेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरेंगे आप, करंट वाला एड्रेस, राइट। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो पहले 10th का डिटेल भरेंगे, 10th सेकेंडरी है, 10th अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी ये अपने आप आएगा। सब्जेक्ट में लिखना है आपको, जैसे 10th किस में रहा, साइंस स्ट्रीम रहता है जैसे जनरली, तो इसमें मैथ्स साइंस जो भी सब्जेक्ट रहे होंगे वो मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड रहा है, CBSE या UP बोर्ड या ICSE, को स्कूल का या कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम यहाँ पे, और ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया 10th, और परसेंटेज था या CGPA था वो चूज करके यहाँ पे फिल कर देंगे, राइट। उसके बाद 12th की डिटेल आप इसी तरीके से फिल करेंगे। एंड देन ऐड न्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान लिया आपने अगर MTech किया हुआ है फिर से MTech करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। देन वर्क एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, ऑलरेडी वर्क किया है, तो किस पोस्ट पे थे, किस कंपनी का नाम है, प्रेजेंटली वर्किंग हो या पहले किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की आप देंगे। अगर एक से ज्यादा जगह पे वर्क किया है देन यू कैन ऐड एम्प्लॉयमेंट, ऐड कर सकते हैं उसको, ओके। नाउ उसके बाद कोर्स चॉइस, अब यहाँ पे कोर्स चॉइस आएगा, तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट और प्रोग्राम दो चीजें आ रही है, राइट। सो आप पहले डिपार्टमेंट चूज करोगे, उसमें से डिपार्टमेंट चूज करने के बाद जो ब्रांच के ऑप्शंस आएंगे वो चूज कर लोगे। ये फिल नहीं करना है, चूज करना है, ऑप्शंस आएंगे अकॉर्डिंगली, जो ऑटोमेटिक ऑप्शंस आएंगे, ठीक है ना, जो आपने बीटेक की ब्रांच भरी होगी और गेट में डिटेल भरी होंगी ना, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली लिस्ट आएगी, उसमें से आपको चूज करना है। मैक्सिमम 4 डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो और 14 मैक्सिमम टोटल चॉइस यहाँ पे आ सकती हैं, और ऐड करते जाएंगे आप, ऐड डिपार्टमेंट करते जाएंगे और आगे नीचे चलेंगे, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपका आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सभी को सिंगल PDF की फॉर्म में लिखा है ना, सिंगल PDF, इन सबको अलग अलग सिंगल PDF की फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर देंगे, राइट। अगर अंडरटेकिंग देना है तो यहाँ पे डाउनलोड करके फिल करके उसको अपलोड कर देंगे, राइट। उसके बाद आगे अगला ऑप्शन फिर पेमेंट का आ जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू दिस एक्टिविटी। सो आई होप कि आपको IIT रुड़की से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे IIT के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। योरपीडिया की पोस्ट गेट काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं।